Okay, beta. So yesterday we started this ideal gas equation. This is the last topic for this chapter, ideal gas. This is pressure equal 1/3 density into c square, and I already told you the meaning of these terms. What was rho? What was rho over there? It is gas density. And we can further write gas density into mass over volume. Or we can further write this mass is the total mass, so we can further write number of particles in gas into mass of single particle over volume. So we can always replace this V with this in the equation, Nm over V. Then what was C square? What was C square? It is mean. These two brackets show mean or average, and then squared, mean squared speed of gas particles. Okay, so now we have to assume that this is a cubic box, and this is having its sides are of length L and its volume is L cube. Then we imagine that it is filled with lot of ideal gas particles and they are moving randomly in all directions, right? So we assume only one gas particle, right? And let's say down there, let's say this is the gas particle which is moving inside that space over here, inside the box. So here I have drawn three-dimensional axis, blue, black, and this red one. So the blue one is x-axis, the black one is y-axis, and the red one is z-axis, because this is a cubic box is actually three-dimensional space. So ये जो गैस पार्टिकल है ये जब मूव कर रहा है ना तो ये 3D में मूव कर रहा है, ज़ाहिर है ऐसे बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है. Red one is the z-axis, yeah, and the black one is the y-axis, yeah. Nothing to worry about this. This is just the explanation. You can say that if this room is that box in which gas particle is moving, and this pen is the gas particle. So if this gas particle is moving like this, so it is moving in 3D. Why? Because when it is moving up, it is covering distance along that axis. It is covering distance along that axis as well, and it is covering distance along the other axis as well, right? So, okay, but what we do is we only take the motion along one axis, and that is x-axis. Just take the motion along x-axis, और हम imagine करेंगे कि ये particle यहाँ से move करेगा, और ये जो x-axis वाली wall shade की हुई है, इसको वो आके hit करेगा, इसके साथ उसका impact होगा, right? अच्छा, उसके बाद जब हिट करेगा, हिट करके यहाँ से रीबाउंड वापस चला जाएगा. सो इनकमिंग वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विद दैट राइट साइड वॉल इज cx. c is the speed, x is x component. So this is x component of the speed or velocity of the gas particle. When it rebounded perfectly backward, its velocity is minus cx, because velocity is vector, na? So when its direction changes, then we have to assign a negative sign over there. We assume here ये एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी गैस है. अब जाहिर है ये सीधा तो नहीं जा सकता, रास्ते में बहुत सारे इनकाउंटर होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स को हिट करेगा, बट वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि भाई ये किसी के साथ हिट या कलाइड नहीं करेगा, बस यहाँ से जाएगा सीधा वॉल को हिट करेगा, वॉल को हिट करके वापस इस वॉल तक आ जाएगा. दिस इज ओवर अजम्पशन, बिकॉज हमने प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, इससे आगे चलते हैं. ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंटम है, बिकॉज इट इज़ मूविंग, सो इट इज़ हैविंग अ मोमेंटम. देन व्हेन इट हिट्स द वॉल, देन इट्स मोमेंटम चेंजेस, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हिट करके रीबाउंड होती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है. अच्छा, नेक्स्ट, जब मोमेंटम चेंज होता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ कम्स. न्यूटन सेकेंड लॉ टेल्स दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. इट मीन्स भाई जब मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स भी लगेगी, राइट? And lastly, that's how the gas pressure is exerted, because pressure is equal to force over area. So this is our scheme of work जो हमने इस टॉपिक में डेरिवेशन के लिए करनी है. Okay, so let's first look upon momentum. Momentum P is equal to mv होता है. अब if we consider the momentum of this particle, so the particle's momentum is x because it is moving along x-axis,
and then mcx. Why cx? Because this is the component of velocity that we are dealing with it. Similarly, the other components will be py is mcy and pz is mcz. These are the other components of momentum along other axis. Okay, how the momentum changes? Step 2. Well, when it hits the wall over here, it make the impact, right? Strike the wall at this point. So after striking the wall, it rebounded. ठीक है, वो वापस रिफ्लेक्ट होएगा. It rebounded backwards. So we say कि इंसिडेंट वेलोसिटी cx है और जो रिफ्लेक्टेड उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस cx है. There is no change in velocity over here. No change in speed, but velocity changes. Why no change in speed? Because we have already studied in kinetic molecular theory for ideal gases कि they collide elastically, कि उनका collision elastic होता है. It means उनकी speed या kinetic energy change नहीं होती. तो हम कहते हैं कि since elastic collisions. अदरवाइज तो वो सेम स्पीड से कोई चीज़ नहीं आ सकती ना हिट करने के बाद. इलास्टिक कोलिजन होगा तो तभी. अच्छा, आप देखो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम में एम वी माइनस यू होता है, तो वी की जगह हमने माइनस सी एक्स डाल दिया, यू की जगह हमने सी एक्स डाल दिया. ये माइनस तो फार्मूला वाला माइनस है और ये माइनस फाइनल वेलोसिटी के साथ है, तो यू गॉट चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस 2mcx. मूविंग फॉरवर्ड मोमेंटम हो गया. अब फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. तो अब मतलब हम एक सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं. पहले मोमेंटम देखा, फिर चेंज इन मोमेंटम देखा, अब हम फोर्स को देख रहे हैं. फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. सो वी जस्ट इंसर्टेड द चेंज इन मोमेंटम वैल्यू ओवर हियर फ्रॉम दिस. इट इज़ माइनस 2mcx ओवर डेल्टा टी. सो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमें ये जो डेल्टा टी है ना, इसको हमें देखना है कि यार ये जो डेल्टा टी है, व्हाट इज़ दिस? टाइम. दिस इज़ द टाइम जो यहाँ पर लग रहा है. दिस इज़ the impact time, right? This can be impact time, या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं कि this can be the time जो कि पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो है वो कंज्यूम किया है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फाइंड दैट टाइम. So we have to replace the time in that equation as well. So time is between the successive collision. So here it's not the impact time, but we have taken that it is the time between successive collision. What does that mean? Successive collision. अब ये important है बस. This is first important thing जो आपने समझनी है. देखो गैस पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट, क्योंकि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. दैट्स वाई हम क्या यूज़ करते हैं? V इज इक्वल टू d/t, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है गैस पार्टिकल्स की. आगे चलते हैं. हम अब जिसकी कंसिडर कर रहे थे दैट वाज cx इज द स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस. फिर 2l. अच्छा, हमने 2l क्यों लिया है? 2l हमें इसलिए लिया है कि हम एक कंप्लीट एजम्पशन के लिए हम ये कहेंगे कि लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वॉल एंड दैट इज द सेकंड वॉल. तो लेट्स से फर्स्ट वॉल से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, मे बी वो बीच में से कहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें तो नहीं पता, वी कांट सी गैस पार्टिकल. तो हम एज्यूम ये करते हैं कि यार मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? वो इधर से स्टार्ट करेगा. जब यहाँ से स्टार्ट करेगा वो आगे जाएगा, L डिस्टेंस कवर किया, और उसको हिट करके जब वो वापस आएगा तो अनदर L डिस्टेंस वो कवर करेगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2L, राइट? तो दैट्स वाई वी से कि जो टोटल डिस्टेंस है बेटा दैट इज 2L ओवर टाइम. तो यहाँ से हमने डेल्टा टी को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास टाइम जो है वो आ गया, राइट? अच्छा बेटा, हम लोग ये थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें आइडियल गैस कल हमने कंटिन्यू किया था, उसका लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है? अच्छा, तो देखो डेल्टा टी हमने रिप्लेस करना है, तो लेट्स से हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है एफ एक्स इज पी एक्स, यानी कि मोमेंटम ओवर टाइम. तो मोमेंटम की जगह हमने माइनस 2mcx पुट कर दिया था, तो डेल्टा टी की जगह 2L ओवर सी एक्स पुट किया. अब 2 से कैंसिल हो गया, सी एक्स यहाँ से हम ऊपर ले गए, और इसके बाद बेटा आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ गया. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ दिस कंटेनर. कि ये जो पार्टिकल आ रहा था, सी एक्स उसकी स्पीड थी, सी स्पीड, एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड. तो ये यहाँ से आइडियल गैस का पार्टिकल आ रहा है, इसने इसको हिट किया, हिट करके यहाँ से वापस आया. तो जब इसने हिट किया है तो जाहिर है इट हैज़ एक्सर्टेड सम फोर्स ऑन द वॉल. तो हमने वो फोर्स निकालनी थी कि यार वो फोर्स कितनी है. तो वी गॉट दैट फोर्स, राइट? तो द फोर्स इज माइनस mcx स्क्वायर ओवर L. दिस इज द फोर्स. अच्छा, अब
देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर जो है दैट इज, प्रेशर के लिए हम ये करते हैं कि वी टेक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हाँ, प्रेशर के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो दिस नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड बिकॉज नेगेटिव साइन इज जस्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर है ना, तो अगर वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन कहीं भी आए तो वो पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होता। इवन ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव आता है, बट वी इग्नोर दैट। क्यों? क्योंकि विद वेक्टर्स नेगेटिव साइन इज पार्ट ऑफ डायरेक्शन ओनली, not part of magnitude, but with scalars it is always part of magnitude। जिस तरह आपको याद हो ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, तो वो नेगेटिव होती है, तो हम नेगेटिव साथ कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, बिकॉज इन स्केलर्स नेगेटिव साइन इज पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इन वैक्टर्स नेगेटिव साइन इज पार्ट ऑफ डायरेक्शन, सो व्हाइल कैलकुलेशन यू कैन इग्नोर दैट नेगेटिव साइन ओनली इन वैक्टर्स। अच्छा, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ इग्नोर हो गया, सो वी से नेगेटिव साइन इग्नोर्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रेशर, मोमेंटम से हम चले थे, फर्स्ट स्टेप मोमेंटम डन, सेकंड चेंज इन मोमेंटम डन, थर्ड फोर्स, ये भी हो गया। अब हमने फोर्स जो है वो प्रेशर का देखना है। प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, वी जस्ट गॉट द फोर्स विच इज दिस वन, तो ये वाली फोर्स की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो दिस इज mcx स्क्वायर ओवर l, और एरिया जो होता है ना बेटा, एरिया दिस इज l स्क्वायर एज वेल। अब एरिया l स्क्वायर कैसे है? एरिया इस वॉल का है जिसके ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहा है गैस पार्टिकल, तो ये वाली जो वॉल है इसका एरिया क्या होगा? l इसकी लेंथ है और l इसकी हाइट है, तो इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया वो l स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम एरिया की जगह एल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये एरिया की जगह एल स्क्वायर आ गया, और ये आपका फोर्स वाला एक्सप्रेशन आ गया mcx स्क्वायर ओवर l। ओके, सो यू गॉट mcx ओवर l क्यूब। अब आपको पता है l क्यूब क्या होता है? व्हाट इज l क्यूब? वॉल्यूम। क्यूब में l क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम होता है, दैट्स वाई हम इसकी जगह वॉल्यूम, बट दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल। मतलब आपने ये जो एक्सप्रेशन देखा है ना प्रेशर का, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए है। आपको कैसे पता एक मॉलिक्यूल के लिए है? क्योंकि यहाँ पे मैंने Cx लिखा हुआ है, तो Cx मीन्स कि m का मतलब क्या है? m इज द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। Cx इज इट्स स्पीड एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो अब गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता, देयर आर टू मेनी मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गैस। टोटल मॉलिक्यूल्स लेट से कितने n, तो अब टोटल प्रेशर x एक्सिस पे कितना हो जाएगा? हम इसी एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ n को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गॉट टोटल प्रेशर बाय ऑल द पार्टिकल्स while they are striking just one wall which is x axis wall, right? अच्छा, अब आपके पास ये वाला एक एक्सप्रेशन आ गया, P is n mcx स्क्वायर ओवर v को उधर शिफ्ट किया तो यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। बट प्रॉब्लम इज ये प्रेशर सिर्फ x एक्सिस पे है। अब वो जो बॉक्स है उसमें तो वो 3D बॉक्स है, उसमें तो y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है। तो अब हमने जब टोटल प्रेशर निकालना है तो हाउ वी कैन फाइंड दैट? लुक, it's the pressure of gas due to all of its molecule having speed in x axis only. Okay, moving forward, adjusting for speed of molecules along all axes, so we apply this rule ke speed, this is the total speed that is equal to component of speed along x axis, along y axis and along z axis as well. And the magnitude for the velocities we take their square, c square is cx square plus cy square plus cz square. अब ये क्या है? How we have written this thing? देखो आपने 2 डायमेंशन में as में एक चीज़ पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि अगर लेट्स से ये स्पीड v हो और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट? तो अब लेट्स से अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालने हों, राइट, इसके कंपोनेंट्स, या चलो मैं कंपोनेंट्स भी लिख देता हूं कि x एक्सिस पे vx है और y एक्सिस पे vy है। अब आपने इनका एक रिलेशन लिखना है, तो कैन यू राइट द रिलेशन बिटवीन vx एंड vy? as के वेक्टर्स, सिंपल वेक्टर्स कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे? एक तो v स्क्वायर इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये लिखोगे ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, पिथागोरस थ्योरम,
ऐसे ही है ना, मतलब देखो ना, आप ये वाला जो वेक्टर है ना, ये यहाँ पे ले जाओगे, मतलब इस तरह ये वेक्टर यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये वी है। तो आपने इनका रिलेशन लिखना है, तो वेन एवर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, यू नो ऑल द थ्री साइड्स, तो यू राइट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे ही है ना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम इन 2 डायमेंशन, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम इन 3 डायमेंशन, सेम थिंग, ठीक है। तो सी स्क्वायर मतलब उसकी जो स्पीड का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। 3 डायमेंशन वेक्टर इज नॉट इन ओवर सिलेबस, लेकिन सिर्फ ये दिस इज द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट एंड लास्ट, वन एंड ओनली है जहाँ पे हम ये 3D वेक्टर्स इन 3D हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, तो अब देखो, अब हम एक और चीज़ कहते हैं कि यार बात ये है कि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दीज वेलोसिटीज सी एक्स, सी वाई, सी जी, इनके कंपोनेंट्स? क्या ऐसे होगा कि अगर आप इमेजिन करो, एक जिस तरह लेट्स से एक गैस पार्टिकल है इस रूम के अंदर और वो मूव कर रहा है अलॉन्ग विद मैनी अदर्स, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि गैस पार्टिकल की स्पीड एक एक्सिस में ज़्यादा हो, दूसरे एक्सिस में कम हो, तीसरे एक्सिस में और कम हो? इज़ इट पॉसिबल फॉर अ गैस? नहीं, इलास्टिक वो तो कोलिशन तो बाद में होएगा ना, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पीड, कि क्या ये पॉसिबल है कि एक सिंपल सोचो कि अगर एक पार्टिकल मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं अब 2D में मूव कर रहा हूँ, 3D में तो नहीं कर रहा ना, 3D में मैं उड़ना शुरू हो जाऊँ तो मैं 3D में फिर मूव करूँगा, अभी मैं 2D में मूव कर रहा हूँ, राइट? तो क्या ये पॉसिबल है कि एक एक्सिस में मेरी स्पीड ज़्यादा हो और दूसरे में कम हो? है पॉसिबल? अच्छा, कैसे पॉसिबल है बताओ ज़रा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हूँ तो आई एम इन 1 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब नाउ आई एम इन 2 डायमेंशन। कैसे? मतलब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो मैं उधर भी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ और इधर भी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, थोड़ा और आ रहा हूँ तो इधर भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, इधर भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, ऐसे ही है ना। मतलब मैं यहाँ पहुँचा तो दिस इज माई 2D मोशन, तो क्या मेरी इस एक्सिस की स्पीड अलॉन्ग और है और इधर स्पीड और है, डिफरेंट है? लेकिन आप तो बिल्कुल 45 डिग्री पे एंगल पे चल रहे हैं, अगर आप कम एंगल रखेंगे हाँ। तो साइड वाले डिस्टेंस आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, उस साइड वाला कम ट्रैवल करेंगे। स्पीड? तो डिस्टेंस और टाइम का वो नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ये इस तरह नहीं होता, इसको हम इस तरह नहीं निकालते बेटा, हम निकालते हैं स्पीड, या चलो मोर अप्रोप्रिएटली वेलोसिटी कह लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होएगा। तो देखो टेक्निकली अगर एक गैस पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके हर एक्सिस में स्पीड सेम होएगी। क्यों? क्योंकि गैस का टेम्परेचर सेम है। जब गैस का टेम्परेचर सेम है तो उसकी स्पीड कैसे डिफरेंट हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। सो ऑल द गैस पार्टिकल्स विल बी हैविंग सेम speed along all axes. We are assuming it as well again because we can't see that thing. Based on scientific evidence, we can say due to random motion, as molecules are equally likely to move in all directions, their average velocity along x-axis, y-axis and z-axis are same. Their average velocity are same. Why? Because they move randomly. So then we can say कि भाई जो cx, cy और cz है ना, ये सब सेम होंगे. This is why we get the same gas pressure on all sides of walls of the container. अब ये भी है कि देखो, अब अगर उसके 6 वॉल्स हैं तो एक पे ये तो नहीं होगा एक पे प्रेशर ज़्यादा होगा और एक पे कम होगा। मतलब एक गैस सिलेंडर के अंदर क्या ये पॉसिबल होता है कि एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर हो एक साइड पे कम हो? नहीं ना। क्यों नहीं पॉसिबल? व्हाट्स द रीज़न? सिंपल रीज़न। क्या रीज़न है? रैंडम मोशन की गैस पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली, दे आर नॉट मूविंग इन वन डायरेक्शन, दे मूव रैंडमली। ओके, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो तीनों स्पीड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप। ये तीनों इक्वल हैं और ऑलमोस्ट इक्वल हैं। देखो थोड़ा सा फर्क होगा, दैट्स व्हाई वी से ऑलमोस्ट इक्वल। ये ऑलमोस्ट इक्वल का साइन है। ओके, तो अब हम क्या कह सकते हैं? सी स्क्वायर मीन स्क्वायर स्पीड, दिस इज एवरेज सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ एवरेज। एवरेज मीन बेटा हम ऑल पार्टिकल्स के लिए ले रहे हैं, सब पार्टिकल्स के लिए। सो सब पार्टिकल्स की जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने कहा भाई वो तीनों तो सेम है, तो हम y और z को भी x कह सकते हैं। तो आपके पास आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3cx स्क्वायर, और सी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, यू गॉट 1/3 एवरेज
स्क्वायर स्पीड। तो आपने अब क्या करना है, ऊपर जो एक्सप्रेशन आपके पास आया हुआ था उसमें आपने उसको रिप्लेस कर देना है। कहाँ पे रिप्लेस कर देना है? ये जो सी एक्स स्क्वायर आपके पास आया हुआ है इसको आप रिप्लेस कर दोगे किस चीज़ से? 1/3 सी स्क्वायर से। सो यू विल गेट पी वी इज इक्वल टू 1/3 NMC square. So this is the expression we are looking for, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे थे। इसमें ये जो c स्क्वायर है इसको क्या कहते हैं? सिंपल c स्क्वायर। इसका नाम क्या है? मैं अभी लेसन के शुरू में भी बताया है, मीन। बेटा ये बहुत सिंपल है। ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स किसकी सिंबल होती हैं? मीन या एवरेज। एवरेज मतलब आप सब गैस पार्टिकल्स की एवरेज फाइंड कर रहे हैं, एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं। सो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एवरेज की सिंबल है। फिर ऊपर 2 है तो वो स्क्वायर है, एवरेज स्क्वायर। और फिर सी क्या है? स्पीड। तो एवरेज स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स। एवरेज को हम मीन भी कह सकते हैं, मीन। एवरेज और मीन सेम थिंग। तो मीन स्क्वायर्ड स्पीड इसको कहते हैं। अच्छा, अब हमें स्क्वायर तो नहीं निकालना होता, हमें स्पीड निकालनी होती है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी टेक रूट ऑफ दैट। जब हम रूट लेते हैं बेटा तो इसका नाम चेंज हो जाता है और ये हो जाता है CRMS। अल्टरनेटिंग करंट में आपको याद होगा हमने IRMS VRMS पढ़ा था। रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, राइट। सो दैट इज द सिंग, क्योंकि हम वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट स्क्वायर। हम कहते हैं यार हमें वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ, ये स्क्वायर क्या बता रहे हो कि स्क्वायर स्पीड इतनी है, हमें सिंपल स्पीड बताओ। तो दैट्स वाई व्हाट वी डू इज हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल। दिस कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इन द पास्ट पेपर्स। कि वो आपको कहता है कि डाटा दे के कहता है कि आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालो गैस पार्टिकल की। तो आप वही पी वी, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है पी वी इज 1/3 NMC स्क्वायर, आप यहाँ से सी स्क्वायर निकाल लोगे। बाकी डाटा गिवन होगा, ऑफ कोर्स आपके पास प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मास ऑफ द गैस आपके पास होएगी और आप वहाँ से सी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लोगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद बस आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, जो भी आंसर आएगा यू विल टेक द स्क्वायर रूट। आप कहोगे ये लें भाई ये आंसर है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल का। ओके, अच्छा अच्छा, आप रूट मीन स्क्वायर क्यों लेते हैं? रूट मीन स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि देखो भाई गैस पार्टिकल की पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटीज दोनों होती हैं। अगर मैं गैस पार्टिकल हूँ, आई एम मूविंग दिस वे, तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है। मैं एक और गैस पार्टिकल हूँ, आई एम मूविंग दिस वे, क्योंकि गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली, कुछ सारे एक तरफ तो नहीं जा रहे होते ना, राइट। तो वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो जो एक साइड पे जा रहा होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो उसके अपोजिट जा रहा होता है उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक कंटेनर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं दे हैव पॉजिटिव वेलोसिटीज एज वेल, दे हैव नेगेटिव वेलोसिटीज एज वेल। अब हम नेगेटिव को भी कैटर हमने करना है तो इसलिए हम स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। फिर हमें मीन लेनी होती है कि अच्छा यार ये तो इतने सारे हैं, सबकी मीन लो। तो पहले हम इंडिविजुअल गैस पार्टिकल का स्क्वायर लेते हैं ताकि नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएं। फिर हम कहते हैं इन सबको ऐड कर दो। तो जब सबको ऐड करते हैं तो वो टोटल स्पीड हो जाती है। और फिर हम कहते हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा? एक पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी। तो उसको हम कहेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। फिर हम कहेंगे अच्छा ये तो मीन स्क्वायर स्पीड आई है, हमें असल स्पीड बताओ कितनी है, ये तो स्क्वायर बता रहे हो आप। तो हम कहते हैं अच्छा जो मीन स्क्वायर स्पीड आई है उसका रूट ले लो। जब उसका रूट लेते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाती है। और उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे गैस पार्टिकल थे, हमने कुछ काम करके एक पार्टिकल की स्पीड निकाली है जो उन सब पार्टिकल्स की कंबाइंड स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमने इस पार्टिकल की स्पीड निकाली है यही बाकी पार्टिकल्स की भी स्पीड है, एवरेज। जिस तरह आपने 10 एग्जाम्स दिए, 10 टेस्ट दिए, सब में आपके डिफरेंट मार्क्स हैं, ठीक है। अब लेट से नेगेटिव मार्क्स भी किसी में आ गए, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप 0 से भी नीचे चले गए, हो सकता है ना। हाँ, नेगेटिव मार्किंग टेस्ट होते हैं ना, तो आप हो सकता है 0 भी नहीं लिया आपने, -10 ले लिया, -20 ले लिए। बाकी कुछ टेस्ट हैं उसमें आपने बहुत अच्छे ले लिए। अब जब आपका एवरेज कलेक्टिव स्कोर निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे? हम यही मेथड लगा सकते हैं, हम स्क्वायर करके और उसको लेट से स्क्वायर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरा ख्याल है ये एग्जांपल यहाँ फिट इन नहीं आ रही, क्योंकि आप स्क्वायर करोगे तो वो तो आपके मार्क्स पॉजिटिव में चले जाएंगे। लेकिन चलो लेट्स से
स्क्वायर किया, नेगेटिव वाले मार्क भी पॉजिटिव में आ गए, फिर आपने एवरेज लिया, एवरेज लेके आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपने कहा भाई ये जो है ना, ये मेरी रूट मीन स्क्वायर मार्क्स हैं जो मैंने लिए हैं इन सब टेस्ट में। हालांकि हम ये करते नहीं हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल इतनी फिट इन नहीं आती। ओके, सो रूट मीन स्क्वायर कब निकालते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये 1-2 सालों में उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर क्यों यूज़ करते हैं। हम कहते हैं यार हमें नेगेटिव साइन, वी हैव टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव साइन बिकॉज all the molecules are moving in random direction, they have positive and negative velocities as well, so we have to remove the negative sign. That's why we are taking root mean square speed. We are not just taking simple speed but root mean square speed, right? Okay, so one last final relation that we have to derive is जो आपको पता भी है, you know, आपने O levels में एक चीज़ पढ़ी थी, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है? How you define temperature? How you define temperature? ये डिफाइन करेगा टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स? वर्ड्स ठीक हैं लेकिन कुछ और ऐड करना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, तो इसकी असल ये डेफिनेशन है। वैसे तो हम कहते हैं इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स में इस तरह कहते हैं, लेकिन जो असल में डेफिनेशन होती है वो होती है टेम्परेचर की, इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। इमेजिन आप सब मॉलिक्यूल्स हैं, आप सब एक सब्सटेंस के अंदर हैं, तो हमने टेम्परेचर निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सब की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, उसको ऐड कर लूंगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लूंगा, तो वो आ जाएगी एवरेज, क्योंकि मैं किसी एक की नहीं निकालना चाहता। हो सकता है वो एक की ज़्यादा हो, बाकी किसी की कम हो, तो वो मुझे सही में आंसर जो है वो ना मिले। दैट्स वाई व्हाट आई डू इज आई टेक एवरेज, I add all the kinetic energies and then I divide it with number of particles. So बेटा टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर, है ना? ये तो देखा देखा लग रहा होगा आपको एक्सप्रेशन ये वाला, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हमने डिराइव कैसे किया है, ये हमें कैसे पता, ये अभी हम इस डेरिवेशन में देखेंगे, ठीक है? तो ये जो डेरिवेशन अभी हम देखने जा रहे हैं, ये हमें ये बताएगी कि टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वी हैव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये बहुत सिंपल भी है, इवन अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा फिर भी आप आराम से इसको देख के समझ सकते हो, बिकॉज मेन थिंग इज कि जो चीज़ें हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे शायद वो आपने ना पढ़े हो, लेकिन मेथड तो आप समझ सकते हैं ना कि इसको, इन इंग्रेडिएंट को हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया और ये हमने निकाला है। सो बेटा ये जो है ये हमने, वी जस्ट हैव डिटरमिन्ड दिस, ये क्या है, ये आइडियल गैस का प्रेशर का एक्सप्रेशन है, ठीक है? P इज 1/3 रो C स्क्वायर। C स्क्वायर क्या है, व्हाट इज दिस C स्क्वायर? मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है? रो क्या है, डेंसिटी। अब इस डेंसिटी की जगह मैंने nm/v लिख दिया, ये क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट। बेसिकली तो मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, लेकिन यहाँ चूंकि गैस के पार्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए हम nm लिख देते हैं, खाली मास ओवर वॉल्यूम नहीं लिखते कि टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम, नहीं, हम कहते हैं भाई एक पार्टिकल की मास डिवाइडेड बाय नंबर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 3v उधर चला गया, 3pv इज nmc स्क्वायर बन गया। अब जस्ट रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, नथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद we already have developed this equation before, तो ये बेटा दो इक्वेशंस हैं जो हमें यूज करनी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों आइडियल गैस की इक्वेशंस हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जो लास्ट कल हमने लेक्चर जो लिया था उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा था PV इज NKT होता है, और एक और भी हमने पढ़ा था PV इज स्मॉल n RT होता है। तो बेटा बस देखो ये तीन इक्वेशंस हैं, 1 2 3, और एक चौथी भी है PV/T इज कांस्टेंट। तो बेटा ये बस 4 इक्वेशंस हैं जो आइडियल गैस की इक्वेशन है, कोई फिफ्थ इक्वेशन नहीं है। तो मतलब ये कि इवन अगर आपने नहीं भी पहले देखा हुआ तो अभी आपको एक चीज़ पता लग गई कि यार जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस क्या होती है बाय द वे, आइडियल गैस होती क्या है?
एक ऐसी गैस बेटा जिसके एटम्स, जिसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, बाइंडिंग नहीं होती और उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जिस तरह लेट से आप सब अगर गैस पार्टिकल हो और आपके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, आप सब बिल्कुल सेपरेट हो, फ्री टू मूव हो, कैसे मतलब एक जिधर जाना चाहे वो जा सकता है, कोई दूसरा उसको रोकेगा नहीं, तो हम कहेंगे भाई इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, राइट, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। और जब कोई बॉन्डिंग नहीं होती गैस में तो फिर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो आइडियल गैस इज द वन इन विच मॉलिक्यूल्स हैव नो बॉन्डिंग एंड इट्स मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। फिर आइडियल गैस की ये इक्वेशंस हैं, पी इज 1/3 रो सी स्क्वायर, ये हमने डिराइव किया, ये भी हो सकता है। फिर पी वी इज एन के टी, P pressure, V volume, N number of particles, K Boltzmann constant, T thermodynamic temperature. PV is nRT भी हो सकता है, P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is universal gas constant और T is thermodynamic temperature. और ये PV over T is constant, P pressure, V volume और T thermodynamic temperature. बस यही इक्वेशंस आनी है आइडियल गैस की फॉर्मूलाज में और न्यूमेरिकल्स में, और कोई इक्वेशन नहीं है। ओके, सो इसको जब हम पी वी इज एन के टी और इधर पी वी इज ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, तो हमने कहा यार ये जो पी वी की वैल्यू है ना भाई, ये जो एन के टी आ रहा है इसको यार इसकी जगह इंसर्ट कर दो, प्लग इन कर दो, तो देखो वो बन जाएगा 3 एन के टी उधर डाल दिया इज इक्वल टू एन एम सी स्क्वायर। अब देखो एन और एन आपस में कट गया तो ये आ गया 3 के टी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखो हम आहिस्ता आहिस्ता एक फॉर्मेट बनाते जा रहे हैं। अब हम कहते हैं यार ये एम सी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी में एक और चीज़ आती है, हाफ एम सी स्क्वायर होता है ना। तो हम दोनों तरफ 1/2 इंट्रोड्यूस कर देंगे, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2 इंट्रोड्यूस कर देंगे दोनों तरफ। तो जब एक तरफ हाफ एम सी स्क्वायर होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना, मीन काइनेटिक एनर्जी। और इधर इसी तरह 3/2 के टी आ जाएगा। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये, इसकी जगह मैंने यहाँ मीन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। मीन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ मीन स्पीड है, दैट्स वाई। और उसके बाद ये 3/2 कैसे? तो दिस इज ओवर मेन एक्सप्रेशन, अनदर एक्सप्रेशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, इसकी वैल्यू गिवन होती है डाटा बुकलेट में। टी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन में ये टेम्परेचर होता है, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। आप देखो इसमें व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होगी इस पूरे एक्सप्रेशन में, या इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी कभी भी एक गैस के लिए? बहुत सिंपल है, देख के बताना है। 3/2 नहीं चेंज होगा, के नहीं चेंज होगा, ओके। टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है, तो 3/2 के ये कांस्टेंट है। इधर से 1/2 कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि टी और सी स्क्वायर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये हमने यहाँ से एक्सप्रेशन बना लिया। ये तो मतलब ये कि टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल। और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। हम कहते हैं यार नहीं ये सी स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाओ, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक दफ़ा इसको जस्ट ये इस सीक्वेंस में गो थ्रू कर लो, मतलब ऐसे ही आप लिख तो नहीं रहे, ये उसमें फाइल मैंने शेयर की हुई है, आप खाली गो थ्रू हो जाओ इसमें से, एक दफ़ा देख लो कि ये कैसे हुआ है। मतलब ये हमने गैस प्रेशर यूज़ किया, डेंसिटी को एक्सपेंड किया, फिर ये बन गया 3V को हम इधर ले आए, फिर हमने एक और गैस लॉ यूज़ किया PV इज NKT, इसकी वैल्यू इंसर्ट की, फिर कैंसिलेशन कैसे हुई और उसके बाद आगे हम कैसे चले, एक नज़र देख लो इसको। और ये एक दफ़ा बेटा आप लोगों ने खुद भी करने हैं, ठीक है। ये टॉपिक साथ साथ करना है, मतलब कल वाला काम होपफुली आप सब ने, जो कल थे सब ने देखा होगा, उसको रिवाइज़ किया होगा। खाली देखो आके बैठने से तो कुछ नहीं होता ना, मतलब उसको फिर रिवाइज़ भी करना होता है। तो ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, इसको साथ साथ रिवाइज़ करो, साथ साथ 2-3 इसके क्वेश्चंस जो है ना वो भी कर लो, और नेक्स्ट डे जो कोई प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लो, या उसी टाइम जब
सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट ये जो आपका चैप्टर है ये तो अभी हो जाए ना, साथ ही हो जाए। इसका कोई लिंक भी नहीं है पीछे किसी और के साथ, ये बिल्कुल इंटायरली बिल्कुल डिफरेंट आइसोलेटेड सा ये टॉपिक है। ओके, सो इज़ एवरीथिंग फाइन? कोई चीज़ मुझे दोबारा तो नहीं एक्सप्लेन करनी इसमें? नहीं? ओके ओके जी, अब एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ये टेम्परेचर जो है ना, ये उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेट्स लुक अपॉन वन एग्जांपल। गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस have the CRMS of 450 मीटर पर सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब ये कि गैस है कंटेनर के अंदर और उसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो 450 मीटर पर सेकेंड है। केल्विन में यूज़ करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला के अंदर तो हम हमेशा ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं ना, तो टेम्परेचर की केल्विन है। अनलेस कि अगर दोनों तरफ टेम्परेचर आ रहा हो तो देन यू कैन यूज़ डिग्री सेल्सियस। जब दो तरफ क्वांटिटीज़ आ रही होती हैं तो आप नॉन ऐसा यूनिट यूज़ कर सकते हो, बट अगर एक दफ़ा हो तो फिर आपको ऐसा यूनिट यूज़ करनी होती है। ओके, सो व्हाट शुड बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड व्हेन द टेम्परेचर इज़ 250? इट्स सिंपल यूज़ ऑफ रेशियो मेथड। देखो, द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ कन्वर्टिंग दैट इनटू केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिग्री सेल्सियस के लिए साथ करोगे, रेशियो लगाओगे, यू एंड अप विद रॉन्ग आंसर, राइट? आपने फॉर श्योर क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट किया 373 आ गया, अच्छा 250 को किया 523 आ गया। ओके, अब हमने ऊपर एक रिलेशन ऑलरेडी डेवलप किया हुआ था ओवर हियर कि ये जो टी स्क्वायर, टी है प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर है, या स्क्वायर रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू सी आर एम एस है। इस रेशो को, दिस शुड बी इन अवर माइंड, और हम इसको यूज़ करेंगे। अगर ये आपके माइंड में नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन एज वेल कि भाई हमने ये सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ 3/2 के टी, यही था ना, 3/2 के टी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होती है, 12mc², क्योंकि ये मीन स्क्वायर स्पीड होती है। तो आप इस तरह लिख के और फिर आप डेवलप कर सकते हो कि 12m कांस्टेंट, 3/2 k कांस्टेंट, तो दैट्स वाई दिस c² प्रोपोर्शनल टू t और t प्रोपोर्शनल टू c², और फिर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट t प्रोपोर्शनल टू CRMS। तो ये आपने एक्सप्रेशन इस तरह जो है वो डेवलप करना है। अब आप सिंपल रेशियो लगाओ और बस स्क्वायर रूट लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट योर आंसर ऑफ 533 मीटर पर सेकेंड, जो कि 250 पर है। तो इसमें आपने ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, यूज़ ऑफ रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है इसको यूज़ करने का आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत कॉमन है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, या फिर मीन स्क्वायर्ड स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली, फिर उसमें टेम्परेचर का स्क्वायर रूट आप नहीं लेते। 450 का अगर स्क्वायर कर लें, हाँ तो वो तो फिर देखो ना, ये यूं भी है ना, t प्रोपोर्शनल टू c² है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले टेम्परेचर 373 था, रेशो 450, इसका स्क्वायर कर लो। हाँ ठीक है, यूर राइट, स्क्वायर करके भी कर सकते हो इससे भी। और फिर जो है वो आपका टेम्परेचर 523 है, तो फिर ये निकालना है, लेकिन अब c² आएगा आखिर में, फिर आपको स्क्वायर रूट लेने ही लेना है। स्क्वायर रूट के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो एक पार्टिकल की स्पीड चाहिए ना, स्क्वायर स्पीड तो नहीं चाहिए। तो इसलिए जब आप c² यहाँ से निकाल लोगे रेशो से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, c² इक्वल आंसर, तो क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं, आप कहोगे अब इसका स्क्वायर रूट लो, तो वही यहाँ पहले लिया हुआ है, तो मतलब सेम थिंग। ओके, सो बेटा दिस आइडियल गैसेस आर डन। नाउ द नेक्स्ट important topic in it is thermodynamics. We have some time, 2-3 minutes, couple of minutes, so just have an introduction. कल फिर हम thermodynamics को complete कर लेंगे। तीनों का है, everything is there. Okay, what is thermodynamics? Thermo is extracted from thermal. Thermal is heat. Dynamics is extracted from movement or work. So thermodynamics is the branch of physics that deals with
द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द सिस्टम्स, कि जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सिस्टम क्या करता है उससे। अब जस्ट इमेजिन वन थिंग, अगर एक गैस सिलेंडर हो और उस गैस सिलेंडर के ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ हो और उसके अंदर हमने गैस फिल की हुई हो, आइडियल गैस, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है। अगर हम इसको हीट सप्लाई करें, हीट को क्यू लिखते हैं, क्यू, तो क्या होगा इस सिस्टम के ऊपर? व्हाट इफेक्ट दिस हीट विल हैव ऑन द सिस्टम? प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब गैस पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, देयर स्पीड, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, और उसके बाद क्या होएगा कि वो फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा, गैस सिलेंडर के साथ पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, गैस एक्सपेंड होएगी। इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन। गैस ने क्या किया है, वर्क किया है। यही वर्क किधर होता है, गाड़ी के इंजन के अंदर। गाड़ी के इंजन के अंदर जो पिस्टन्स होते हैं उसके अंदर एग्जैक्ट यही वाला काम हो रहा है। दिस इज, आई हैव ड्रॉन वन पिस्टन ऑफ द इंजन, और उसमें क्या है, अंदर फ्यूल गया, साथ एयर आई, उसमें से ऑक्सीजन कंबस्शन के लिए यूज़ होती है, स्पार्क प्लग लगे होते हैं, वो स्पार्क जनरेट करते हैं। और स्पार्क क्यों जनरेट करते हैं, फ्लेम ज़ाहिर जनरेट करने के लिए। तो उस पिस्टन के अंदर जो है वो गैस जो है, जो पेट्रोल है, वो बर्न होता है। जब वो बर्न होता है तो क्या होता है, अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, उसके साथ जो पिस्टन, जो अंदर पिस्टन लगा होता है वो मूवेबल होता है। तो जब अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो पिस्टन पे फोर्स लगाता है और पिस्टन मूव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक जो मेन क्रैंक शाफ्ट होती है उसके साथ बहुत सारे पिस्टन लगे होते हैं, वो सारे पिस्टन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो मूव करते हैं तो वो शाफ्ट मूव होना शुरू हो जाती है और आगे व्हील्स के साथ, फ्रंट व्हील ड्राइव वगैरह है तो उसके साथ लगी होती है, जिससे गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो असल में जो गाड़ी चल रही होती है वो किस वजह से चल रही होती है, वो थर्मोडायनामिक्स की वजह से चल रही होती है। कि भाई आपने हीट सप्लाई की है किसी सिस्टम को, या हीट जनरेट की है, उस हीट ने आपको वर्क बना के दिया है, वो हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो ये सब हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। बट दिस टॉपिक इज नॉट फॉर द व्हीकल्स। व्हीकल्स की जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि भाई व्हीकल में ये ऐसा होता है। ओके, सो स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इन्वॉल्व हीट एंड वर्क एंड कन्वर्जन बिटवीन दैम। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द लास्ट थिंग फॉर टुडे, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. इट हैज गॉट सेवरल स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हीट सप्लाइड, हीट इज Q. Heat supplied to a system is equal to sum of increase in internal energy of the system and work done by the system. मतलब देखो, जो आप हीट सप्लाई करते हो उससे एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और प्लस सिस्टम जो है वो वर्क भी करता है। कैसे? जैसे वो पिस्टन की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। जो आपने हीट सप्लाई की है, इसने दो काम किए हैं। इसने एक वर्क किया है, वर्क डन बाय एक्सपेंशन में, मतलब वो गैस एक्सपैंड हुई है तो वर्क डन बाय गैस हुआ है। और सेकंड इसने क्या किया है, इसने गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इंटरनल एनर्जी भी हम आगे जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस वर्क डन बाय सिस्टम। देखो, मैंने आपसे शुरू में यही पूछा था कि हीट सप्लाई करेंगे क्या होगा, तो आपने पहले क्या कहा था, मात क्या कहा था? फर्स्ट थिंग, प्रेशर इंक्रीज होगा, गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और आइडियल गैस में तो पोटेंशियल होती ही नहीं है, तो इसलिए जब काइनेटिक बढ़ेगी तो इंटरनल बढ़ेगी। और प्लस क्या होगा, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगी और गैस एक्सपेंड होएगी। तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय गैस, राइट। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. रिमेनिंग इंशाल्लाह we'll continue tomorrow.